In the previous video, we have discussed till question 6. This is 2019 May-June paper. We need 1, 2. So now question 7 is the functions f and g are defined by f of x is equals to 3x minus 2 and g of x is equals to 2x plus 3 over x minus 1. Part 1. Obtain expressions for f inverse of x and g inverse of x, stating the value of x for which g inverse of x is not defined. So, इसमें हम f inverse of x find करेंगे, g inverse of x find करेंगे, and then we will tell के for which value of x g inverse of x जो है वो defined नहीं है. So, write f of x is equals to 3x minus 2. Then second step is replace f of x with y. So, y is equals to 3x minus 2. Third step is swap x and y. So x की जगह पे y लगा दें, y की जगह पे x लगा देंगे. So this becomes x is equals to 3y minus 2. And next step is to make y as a subject. So now we are going to separate out y, and you can see y is equals to x plus 2 over 3. So finally, we will write down f inverse of x is equals to x plus 2 over 3. This is done. Now g inverse of x. So write g of x is equals to as it is, which is given 2x plus 3 over x minus 1. Then for second step, replace g of x with y. So y is equal to 2x plus 3 over x minus 1. And next, what we can do, we are going to swap x and y. So instead of x, we are writing y, and instead of y, we are writing x. So x is equals to 2y plus 3 over y minus 1. And next target is to separate out y. So यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, x into y minus 1 is equals to 2y plus 3, and then simplifying xy minus x is equals to 2y plus 3. नेक्स्ट हमने y वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड पे कलेक्ट कर लिया एंड बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया. सो xy minus 2y is equals to x plus 3. अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे. So taking y as a common, y into x minus 2 is equals to x plus 3. And finally, we have y is equals to x plus 3 over x minus 2. So g inverse of x is x plus 3 over x minus 2. Now we can see that if we put x is equals to 2 in g inverse of x, this would be something over 0, which is undefined. Here this produces 0 if we take x is equals to 0. So something over 0 is going to be undefined. So we are writing that g inverse of x is not defined for x is equals to 2. So we cannot take x is equals to 2 for g inverse of x. Next is second part. Solve the equation f of g of x is equals to 7 over 3. So इस पार्ट में हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लेनी है f of g of x एंड देन उसको इक्वेट करना है 7 over 3 के. f of x फंक्शन हमारे पास था 3x minus 2, एंड नाउ अब हमने क्या करना है, f of g of x है. सो दिस मीन्स के जो हमारे पास फंक्शन f of x था उसमें हम x की जगह पे g of x को रिप्लेस करने जा रहे हैं. ठीक है. सो f of g of x फंक्शन था 2x plus 3 over x minus 1. सो नाउ f of 2x plus 3 over x minus 1. दिस मीन्स कि हम जो f of x हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 2x plus 3 over x minus 1 के साथ. जहां जहां पे फंक्शन के अंदर x होगा उसकी जगह पे हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे. So you can see 3 into 2x plus 3 over x minus 1 minus 2, and जो left hand side है वहां पे आ जाएगा 7 over 3 because this is given that f of g of x is equals to 7 over 3. So इसको 7 over 3 के equal रख दें, and next step is to simplify. So minus 2 जो दूसरी साइड पे जाके plus 2 हो जाएगा. Upon simplifying, this becomes 13 over 3 is equals to 3 into 2x plus 3 over x minus 1. Then perform cross multiplication, and finally after simplifying you will get that x is equals to minus 8. So x is equal to minus 8 हमारा solution है. उन्होंने solve करने के लिए कहा था equation, so हमने ये solve कर दी है. Next question number 8 is not included in our syllabus now.
Next is question 9. The curve C1 has equation y is equals to x square minus 4x plus 7. The curve C2 has equation y square is equals to 4x plus k, where k is a constant. The tangent to C1 at the point where x is equals to 3 is also a tangent to C2 at the point P. Find the value of k and the coordinates of P. So first of all you need to understand the situation. अब इसमें है क्या कि दो कर्व्स आपको गिवन है एंड एक टेंजेंट है जो दोनों कर्व्स के लिए ही टेंजेंट का काम कर रहा है बट एट द डिफरेंट पॉइंट. जो कर्व C1 है उसके लिए टेंजेंट बनेगा एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 3 एंड जो कर्व C2 है उसके लिए टेंजेंट बनेगा एट पॉइंट P. नाउ यू हैव टू इमेजिन कि अगर दो डिफरेंट कर्व्स हैं उनमें से एक सेम जो है वो टेंजेंट लाइन पास कर रही है, वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दोनों कर्व के लिए एज अ टेंजेंट काम कर रही है. सो उसके लिए मैंने आप ये वाली जो डायग्राम है ये ड्रॉ किया. दिस इज नॉट एग्जैक्ट डायग्राम फॉर दीज गिवन इक्वेशंस बट यू कैन गेट द आइडिया कि इस तरह से एक सेम जो टेंजेंट लाइन है वो दोनों कर्व्स के लिए हो सकती है एट द डिफरेंट पॉइंट. एक कर्व जैसे ये C1 कर्व है, इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट वी डोंट नो एंड इस पॉइंट पे ये जो पर्पल लाइन है ये C1 कर्व के लिए टेंजेंट का काम कर रही है. एंड कोई और कर्व होगी C2, उस कर्व को भी यही जो पर्पल लाइन है वो एट पॉइंट P टच कर रही होगी. सो दिस मीन दिस पर्पल लाइन इज टेंजेंट फॉर द C2 एज वेल बट एट द पॉइंट P. And we have to find the value of k, which is unknown in the second curve, and the coordinates of the p. और p हमारे पास क्या है, जो दूसरी कर्व है उसका टेंजेंट हमारे पास है. ठीक है. सो नाउ वी नो कि जो टेंजेंट लाइन है दोनों कर्व की वो सेम ही है. दिस मीन्स द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी सेम either if we calculate from C1 or we calculate from C2 because same line है तो gradient भी same होगा. So now y is equals to x square minus 4x plus 7 ये हमारी फर्स्ट कर्व थी, C1 है. इसका हमने dy by dx निकाला because we are interested in finding the value of m. So dy by dx is equals to 2x minus 4. Now dy by dx at x is equals to 3 because at x is equal to 3 ये tangent है ना. So at x is equal to 3 हम लोग find out करेंगे. So this becomes m is equals to 2 into 3 minus 4 which is 2. So m is equal to 2. ये हमारे पास gradient of the tangent line आ गया. So next is the equation of tangent passing through the point 3, 4. So now how we got 3, 4? हमारे पास ये जो x coordinate था x is equal to 3 ये given है. So अगर हम x coordinate put करेंगे इस curve के अंदर so हमें y मिल जाएगा. ठीक है. So हमारे पास point complete हो जाएगा. So now y is equals to 3 square minus 4 into 3 plus 7. And upon simplifying this gives you y is equal to 4. So 3, 4 is the point. ये वाला जो coordinate हमारा missing था अब ये हमने find out कर लिया. So this is now 3, 4. Okay, now we have a point, we have the gradient. So this means we can write the equation of the tangent line. So now the equation of the tangent line passing through the point 3, 4 and having the gradient m is equals to 2 is. So इसके लिए हम formula लगा लेंगे y minus y1 is equals to m into x minus x1. Which gives you y minus 4 is equals to 2 into x minus 3. And इसको जब simplify कर लेंगे so this becomes y is equals to 2x minus 2. So ये हमारे पास y is equal to x minus 2 equation of tangent आ जाएगी. Now what we can do, हम ये जो y is equal to 2x minus 2 है इसको हम put कर सकते हैं अपनी second equation के अंदर. ठीक है. So अब देखिए यहाँ पे हमने इसको पुट क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो सेकंड कर्व है C2 और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करती हैं. सो जब हमने क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमने कर्व और लाइन को टेंजेंट शो करवाना होता है कि जो कर्व है वो टेंजेंट है टू द लाइन, तो हम क्या करते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. ठीक है. जो y की वैल्यू उसमें कर्व के अंदर हम पुट कर देते हैं, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, देन हम वहाँ से a b एंड c को फाइंड आउट करते हैं, देन हम कंडीशन अप्लाई करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 विच इज द कंडीशन फॉर द टेंजेंट. सो वही सेम क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं जो हम क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में करते हैं वर्किंग. सो ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू 2x minus 2 in the second curve. So this becomes 2x minus 2 whole square is equals to 4x plus k.
अब इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 4x square minus 8x plus 4 is equals to 4x plus k. अब 4x plus k को भी दूसरी साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, and then we get 4x square minus 12x minus 4 minus k is equals to 0. यहाँ से हम a, b and c फिगर आउट कर सकते हैं. a हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, b क्या होगा, minus 12 होगा, and c क्या हो जाएगा, 4 minus k हो जाएगा. Now condition of the tangent हमारे पास क्या है, b square minus 4ac is equals to 0. इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 लिख के इसमें हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज -5. सो नाउ k की वैल्यू आ जाएगी -5. अब जब k की वैल्यू आ जाएगी, सो हम इस प्रीवियस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन बाय सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x. So now we put k is equal to -5 and we get 4x square minus 12x plus 4 minus into -5 is equals to 0. And this becomes 4x square minus 12x plus 9 is equals to 0. And इसको जब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ. सो 9 into 4 दिस इज 36, एंड जो आपके पास x का कोफिशिएंट है दैट इज -12. सो आपने अब दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -12 बने, और वो कौन से हैं, -6 एंड -6. 6 6 the 36 and -6 and -6 gives us -12. So now 4x square minus 6x minus 6x plus 9 is equals to 0. First two terms में से हमने 2x कॉमन ले लिया, so we are left with 2x into 2x minus 3. एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमने -3 कॉमन लिया है, सो -3 इंटू 2x minus 3 is equals to 0. नेक्स्ट हम 2x minus 3 एंड देन 2x minus 3 is equals to 0. सो यहाँ से हमारे पास एक ही x की वैल्यू आएगी, x is equals to 3/2. एंड अगर आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करके सिर्फ आंसर्स लिख देंगे तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा. यू हैव टू शो द वर्किंग ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू हैव टू मेंशन द मेथड. एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से किया है, आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया है, या आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है. जिस भी मेथड से आप इसको सॉल्व करें, यू नीड टू शो द वर्किंग. सो नाउ x इज इक्वल टू 3/2. ये हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड देन हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 को हम कर्व के अंदर पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 एंड प्लस इंटू -5. -5 जब वो k की वैल्यू थी, इस कर्व के अंदर C2 वाली कर्व के अंदर हमने x और k दोनों को पुट किया, तो इधर से हमें y मिलेगा. So from here we get y is equals to +-1. So y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई. ओके, अब इसका अनदर मेथड भी है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास था 4x प्लस के. यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x प्लस के रेज टू द पावर 1/2. अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं हम. सो नाउ dy by dx दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4x प्लस के रेज टू द पावर 1/2 -1. पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, देन इनसाइड डिफरेंशिएशन करेंगे. सो ब्रैकेट के इनसाइड क्या आ रहा है, 4x प्लस के आ रहा है. 4x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 4, एंड k की डिफरेंशिएशन 0. सो ये आ जाएगा यहाँ पे 4. अब नाउ 2 1 the 2 and 2 2 the 4, so here we get 2 into 4x plus k raised to the power -1/2. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि dy by dx की जगह हमने 2 पुट कर दिया. वाई, बिकॉज हमने पहले कैलकुलेट किया था कि m इज इक्वल टू 2 है, एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेंजेंट लाइन है वो दोनों कर्व्स के लिए काम कर रही है. सो दिस मीन्स कि ये जो m की वैल्यू है वो थ्रू आउट द टेंजेंट तो सेम ही रहेगी, चाहे वो हम C1 के लिए निकाल रहे हैं या C2 के लिए निकाल रहे हैं. सो वी कैन सब्सटीट्यूट dy by dx इज इक्वल टू 2. एंड इसको जब मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 and 2 गेट कैंसल्ड, 1 is equal to 4x plus k raised to the power -1/2. नेगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. And then when we square on both sides, so this becomes
1 is equal to 1 over 4x plus k, and finally 4x plus k is equals to 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है. Okay, and now 4x plus k जो है वो is equals to 1 है, and if you look at the second curve which is y square is equal to 4x plus k, this means हम 4x plus k की जगह पे simply 1 भी put कर सकते हैं. So now put in C2, this gives you y square is equals to 1, और यहाँ से आ जाएगा y is equal to 1 और minus 1. So y is equal to 1 अगर आप ले लें तो इसको जब हम कर्व के अंदर पुट करेंगे so ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 5, k की वैल्यू -5 हमने पुट किया जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी. सो 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और इधर से सिंप्लीफाई करके हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर देंगे. सो x इज इक्वल्स टू 3/2. सो हमारे पास पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. इधर वी कैन चूज 3/2 कमा 1, और वी कैन टेक 3/2 कमा -1. जिस भी पॉइंट को पुट करके आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है तो उस पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे. सो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स होंगे. Next is question number 10, A part. In an arithmetic progression, the sum of the first 10 terms is equal to the sum of the next 5 terms. This means sum of the term from 1 to 10. This is equal to sum of the terms from 11 to 15. Find the first term. The first term is A. First part is show that the common difference of the progression is 1 over 3A. So first of all ये जो हमें condition given है कि sum of 10 terms this is equals to sum of the next 5 terms, we need to convert it in mathematical form. So S10 is equal to what? S10 is equal to the sum of the terms from 11 to 15. S10 is denoting the sum of the first 10 terms. So this is equal to the sum of the terms from 11 to 15. अब sum of the terms from 11 to 15 ये हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? S15 माइनस S10, यानी कि आप सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to 15 उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to 10 तो रिमेनिंग जो होगा आपके पास वो सम ऑफ द टर्म्स होगा फ्रॉम 11 to 15. सो इसलिए हम इस चीज को, ये जो हमने अभी ऊपर इंग्लिश में लिखी है, इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो दिस बिकम्स S15 माइनस S10. अब हमने क्या करना है? S10 की जगह S10 का फॉर्मूला लगाना है, S15 की जगह S15 का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड देन अगेन S10 की जगह S10 का फॉर्मूला लगा देंगे. And the formula which we are going to use is Sn is equals to n over 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब इसमें n की जगह 10 पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे, then again 10 पुट कर देंगे. So this becomes 10 over 2 into 2a plus 9d. This is equal to 15 over 2 into 2a plus 14d minus 10 over 2 into 2a plus 9d. अब इन सबको हमने करना है सिंप्लीफाई. इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है. पहले आपने कंडीशन बनानी थी, कंडीशन बनाने के बाद इसके अंदर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है. So now 5 into 2a plus 9d is equal to 15 over 2 into 2a plus 15 over 2 जो है वो next multiply हो गया 14d के साथ, and then here minus 5 into 2a plus 9d. Upon simplifying we get 5 2s are 10, 10a plus 9 5s are 45, 45d is equals to 2 and 2 get cancelled, 15a plus here 2 7 the 14 and 17 into 15 105d. Next minus 2 5 the 10a, then minus plus minus 9 5s are 45d. So now अब ये हमारे पास हो जाएगा 10a plus 45d is equals to 5a, 15a minus 10a 5a plus 60d. अब a वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, एक साइड पे d वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे. So finally we will get d is equal to 1 over 3a which was required. Next, second part, given that the 10th term is 36 more than the 4th term, so find the value of a. अब इसमें भी हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है इसको हमें मैथमेटिकली कन्वर्ट करके लिखना होगा so that we can proceed our question.
and they are saying कि जो 10th term है वो 36 more than है 4th term से. This means A10 is going to be 36 plus A4. Now A10 का फॉर्मूला लिख देंगे और इधर A4 का फॉर्मूला लिख देंगे. इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? AN is equals to A plus N minus 1 into D. Nth term का फॉर्मूला. Remember, this is an arithmetic progression. So A plus 9D, this is equal to 36 plus A plus 3D. एंड यहाँ से D वाली टर्म्स को आप सेपरेट आउट कर लें, A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो D आपके पास आ जाएगा 6. सो D इज इक्वल टू 6. अब प्रीवियस पार्ट में हम D का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके आए हैं, विच इज D इज इक्वल टू 1/3A. अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A. सो नाउ सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू 6 इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन. सो वी गेट 6 is equal to 1/3A, and which gives you A is equals to 18. Okay, next part, the sum to infinity of a geometric progression is 9 times the sum of the first 4 terms. अब इसके अंदर सबसे पहले जो चीज आपने अंडरलाइन करनी है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. प्रीवियस जो हमने पार्ट्स किए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थे. अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज होंगे. एंड कंडीशन इसके अंदर क्या है कि जो S infinity है, दिस इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स. दिस मीन्स S infinity is equals to 9 multiplied by S4. Next step is to substitute the formulas. So S infinity का formula लिख दें, which is A over 1 minus R, and then S4 का formula लिख दें, which is A into 1 minus R raised to the power 4 over 1 minus R. Because this is S4, so 1 minus R raised to the power 4 over 1 minus R. अब इसमें हमने values जो है वो put कर देनी है. So this becomes, first term is 12, so this means A की जगह हम 12 पुट कर देंगे. So now 12 over 1 minus R is equal to 9 into 12 into 1 minus R raised to the power 4 over 1 minus R. Now this 1 minus R and this 1 minus R get cancelled. दोनों ही denominator में आ रही हैं, so we can cancel them. Now 12 is equal to 12 into 9 108 into 1 minus R raised to the power 4. अब ये जो 108 है 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा. So now 12 over 108 is equal to 1 minus R raised to the power 4. अब इधर से R raised to the power 4 को separate कर लें. So this becomes R raised to the power 4 is equals to 1 minus 12 over 108. So R raised to the power 4 is equals to 8 over 9. So ये हमने find कर लिया. We are interested in finding the value of the fifth term. So हमने fifth term find out करनी है. Fifth term में we know कि हमें R raised to the power 4 की वैल्यू चाहिए होगी. So इसलिए हमने इसको यहाँ पे stop कर दिया. Further R की वैल्यू नहीं find की. अगर हमें R find करना होता तो हम इसका fourth root ले लेते तो R आ जाता. So again formula लिखेंगे हम AN का, which is AN is equal to A into R raised to the power N minus 1. Since we need to find the fifth term, so we substitute N is equals to 5. So A5 is equals to A R raised to the power 5 minus 1, which is A R raised to the power 4. अब R raised to the power 4 की वैल्यू लगा देंगे, which is 8 over 9, and upon simplifying we get A5 is equal to 32 over 3. Next is question number 11. The diagram shows part of the curve y is equal to square root of 4x plus 1 plus 9 over square root of 4x plus 1 and the minimum point m. Remember that m is the minimum point. Find expressions for dy by dx and integration of y dx. So सबसे पहले तो कर्व की जो इक्वेशन है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, एंड डिनोमिनेटर्स को हमने कोशिश करना है कि न्यूमरेटर में हम लेके आ सकें. सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 रेज टू द पावर 1 over 2 प्लस 9 इंटू 4x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1/2. ये जो नीचे था हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पावर जो है नेगेटिव हो गई है. सो अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव. सो dy by dx, इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा. dy by dx इज इक्वल टू पावर को नीचे उतारेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे एंड देन इनसाइड डिफरेंशिएशन करेंगे. सो 1/2
4x plus 1 raised to the power 1 over 2 minus 1 and inside differentiation 4x की differentiation हो जाएगी 4 and then 1 की differentiation 0. So ये inside differentiation आपके पास आ जाएगी 4. Next आपके पास जो है 9 as it is, then power को again नीचे उतारेंगे, power में से कम करेंगे inside differentiation and इसको जब simplify कर लेंगे so we get 2 into 4x plus 1 raised to the power minus 1 over 2 minus 18 into 4x plus 1 raised to the power minus 3 by 2. So ये डेरिवेटिव डन हो गया. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेशन. सो उसके लिए कर्व हमने अगेन लिख ली है सेम. एंड नाउ अप्लाई द इंटेग्रल y dx. दिस इज इक्वल टू, आप देखें जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सो पावर के अंदर हमारे पास 4x plus 1 है. 4x plus 1 का डेरिवेटिव क्या है 4. सो दिस मीन्स आउटसाइड द पावर वी नीड टू क्रिएट 4. सो 4 लेकर आने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया 4 से. सो 1/4 यहाँ पे लिख दिया और 4 यहाँ पे लिख दिया. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 4. नेक्स्ट स्टेप में भी, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें भी ऐसे ही है. जो पावर के अंदर आपका एक्सप्रेशन आ रहा है उसका डेरिवेटिव हमने क्रिएट करना होता है पावर से बाहर. सो पावर के अंदर एक्सप्रेशन क्या है 4x plus 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या है 4. सो दिस मीन्स वी नीड 4 आउटसाइड द ब्रैकेट. सो उसके लिए भी हमने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. Now we will apply the formula, power rule of integration. एंड वो क्या होता है, पावर में ऐड करके उसे डिवाइड कर देना है. ठीक है. और पावर रूल आपने कब अप्लाई करना है, जब आपके पास ये बॉक्स के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हो, फिर ही हम पावर रूल अप्लाई करते हैं. इसीलिए हमने 4 क्रिएट किया है. So now 4x plus 1 raised to the power 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 plus 9 over 4 as it is. 4x plus 1 raised to the power minus 1 over 2 plus 1 over minus 1 over 2 plus 1. And don't forget to add c. Next, we have done simplification. And finally, you can see that integral of y dx is equals to 1 over 6 4x plus 1 raised to the power 3 by 2 plus 9 over 2 4x plus 1 raised to the power 1 by 2 plus c. Second part is find the coordinates of m. And m के बारे में उन्होंने हमें information दी थी कि m is the minimum point. And we know that for minimum point, the derivative is equals to 0. So we are going to substitute dy by dx is equals to 0. So dy by dx को equal to 0 रख देंगे हम. dy by dx we have already calculated. So उसको write कर देंगे 2 into 4x plus 1 raised to the power minus 1 over 2 minus 18 into 4x plus 1 raised to the power minus 3 by 2 is equals to 0. अब ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको हम पॉजिटिव कर लेंगे, इनको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो ये पॉजिटिव हो जाएंगी. नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैंने स्टेरिक बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको केयरफुली समझना होगा. अब इसमें से आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से वी कैन टेक 4x plus 1 raised to the power 1 by 2 as a common. सो डिनोमिनेटर में से ये कॉमन ले लें. सो दिस बिकम्स 2 ओवर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 18 ओवर, अब देखिए यहाँ पे था 4x plus 1 raised to the power 3 by 2, इसमें से हम 1 by 2 पावर कॉमन ले रहे हैं. सो रिमेनिंग कितना बचेगा, उसके लिए आप 3 by 2 में से 1 by 2 माइनस करके देख लें. So 3 by 2 minus 1 by 2 gives you 1. So this means कि remaining जो power होगी वो 1 बचेगी. So I have written 4x plus 1 only. And this is equals to 0. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 4x plus 1 raised to the power 1 by 2 है, दूसरी तरफ ये जब जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो इनसाइड द ब्रैकेट हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका हम एलसीएम ले लेंगे. सो इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4x plus 1. नाउ 2 into 4x plus 1 minus 18 is equals to 0. अगेन ये जो 4x plus 1 होगा ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. एंड वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे आ जाएगा 8x minus 2 plus 18. Finally 8x minus 16 is equals to 0, which gives you x is equals to 2. So x is equals to 2 आ जाएगा. So now we have the x coordinate of the point M. Now we need to find the y coordinate. और उसके लिए हमने क्या करना है, x is equal to 2 को हम पुट कर देंगे गिवन कर्व के अंदर. जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कर्व है y is equal to something, उसके अंदर पुट करेंगे. सो उसके अंदर जब हमने सब्सटीट्यूट किया है वी गेट y is equals to 6. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m are 2, 6.
Next part, the shaded region is bounded by the curve, the y-axis and the line through M parallel to x-axis. So इन तीन चीजों से जो shaded region है वो bound है. Find, showing all necessary working, the area of the shaded region. Now we need to find the area of the shaded region. So let's look at the diagram. They are saying कि जो shaded region है वो curve से, y-axis से और द लाइन विच इज पासिंग थ्रू एम एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस उससे बाउंड है. सो इन तीन लाइन से ये जो शेडेड रीजन है ये बाउंड है और हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वो फाइंड आउट करना है. सो अगर आप देखें हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं एम से यहाँ तक जो आ रही है. यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 बिकॉज m के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6. ओके, सो अब अगर हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे y को, सो वी विल गेट दिस होल एरिया. If we integrate the curve y from 0 to 2, then we will get this whole area. अब इस एरिया में से हमें ये जो ट्राइंगल बन रही है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा so that we can get the shaded region. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ दिस y एंड dx एंड देन उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Then we will get the shaded region. So now let's calculate this. ओके, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 y dx. अब इसमें इंटीग्रेशन आपने अगेन परफॉर्म नहीं करनी. वाई? बिकॉज आप इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में परफॉर्म कर चुके हैं. वही सेम आंसर आप लोग यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे. बट वहाँ पे आपने प्लस सी ऐड किया है, यहाँ पे आपने प्लस सी को स्किप कर देना है बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन विद लिमिट्स. सो इंटीग्रेशन विद लिमिट्स में सी जो है वो नहीं आता. बाकी सेम एक्सप्रेशन वही हमने उठा के लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन. जस्ट इसमें प्लस सी नहीं लिखना आपने. So integration is already done. We just need to put the limits. So अब आपने लिमिट्स पुट करनी है एंड लिमिट्स पुट की भी आपने वहाँ पे एग्जामिनर को शो करानी है, दोनों लिमिट्स, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिमिट पुट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, यानी x की जगह पे 2 पुट कर देंगे. देन ब्रैकेट्स लगा के फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट्स पुट करेंगे. सो लोअर लिमिट क्या है 0. सो x की जगह पे 0 लगा देंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोअर लिमिट चूंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 0 होती है, वो ये वाला पार्ट लिखते ही नहीं है और वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि 0 पुट करने से तो वैसे भी आंसर 0 आ जाएगा. बट इन सम केसेस ऐसा नहीं होता. जैसे इसमें आप देख सकते हैं x की जगह हमने 0 पुट कर दिया है. सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. बट व्हाट अबाउट दिस टर्म, व्हाट अबाउट दिस टर्म? ये टर्म्स तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगी. सो इट्स बेटर कि आप कंप्लीट लिमिट्स जो है वो पुट करके तो देन उसको सॉल्व करें ताकि मिस्टेक करने के चांसेस ना हो. ओके, देन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y dx का आंसर आपके पास आ जाएगा 13 whole 1/3. Next is the area of rectangle, and area of rectangle के लिए we look at the diagram. इसकी जो विड्थ है वो 0 to 2, सो 2 यूनिट्स इसकी विड्थ हो जाएगी एंड लेंथ इसकी हो जाएगी 6 यूनिट्स. सो 2 into 6 आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा. So 2 6 is 12 area of rectangle, and then area of shaded region is equals to 13 whole 1/3 minus 12, which gives you 1 whole 1/3 as the final answer. And this is completed. In the next video, we will inshallah do variant 1-3 of May June 2019.